شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج، کیونکہ یہ آخری ٹرانسمیشن ہے، 30واں روزہ ہے۔ پوری آپ کی جو مینجمنٹ ہے، ٹیم ہے، بڑے خوبصورت موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سنا۔ اگر ہمارا کوئی جملہ، کوئی بات کسی کو گراں لگی ہو تو اس پر ہم معذرت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آپ نے سوال کیا، چونکہ ماہ رمضان کریم کا آج آخری روزہ ہے، اب شوال آگے شروع ہو جائے گا۔ عید کا روزہ تو رکھنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ عید کو اللہ کریم نے ہمارے لیے بہت بڑے انعام کے طور پر یہ تحفہ دیا ہے۔ اس پہ کھانے چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا چاہیے، دسترخوان سجانے چاہیے، اور اپنی خوشیوں کو بانٹنا چاہیے۔ کہتے ہیں عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ یہ اس معنی میں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا یہ شیطان کی ہی صفت ہے نا۔ اللہ کا حکم ہے کہ عید والے دن روزہ نہ رکھو، تو اب مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور نہیں رکھتا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو آگے شوال کے 6 روزے ہیں، تو اس میں مختلف لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اکٹھے رکھنے ہیں، یہ رکھنا واجب ہے، کیا ہے؟ تو شوال کے جو روزے ہیں یہ مستحب ہیں، نفلی عمل ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ روزوں میں وقت گزرا ہوتا ہے، تو پھر روٹین میں آہستہ آہستہ اس روٹین سے بندہ جائے تو بہتر ہے۔ ساتھ میں روٹین بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بہت بڑا ہے۔ جو شوال میں 6 روزے رکھ لے تو حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نفلی روزوں کو اپنی روٹین میں لانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا ہوں، اور اس دن مجھ پر اللہ رب العالمین نے وحی بھی نازل فرمائی ہے، تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام ابید کا روزہ یعنی 13، 14، 15 جو چاند کی ہوتی ہے، اس کے روزوں کی بھی فضیلت بتائی گئی۔ اسی طرح صوم داودی کے جو روزے ہوتے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو حضور پاک نے کہا کہ سب سے نفلی روزوں میں افضل ترین روزے وہ صوم داودی ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، پھر ایک دن نہ رکھنا، پھر ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے تھے، اور ان کو حضور علیہ السلام نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ یعنی آپ شوال المکرم کے کوشش کریں، 1-2 دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھ لیں، یوں 6 روزے آپ مکمل کریں، اور پورے سال کے روزوں کا ثواب پائیں۔ شوال کے ان 6 روزوں کی کیا حکمت، فلسفہ کیا ہے کہ آپ، کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے دن، عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کر دیتے ہیں، عید کے دن نہیں رکھتے لیکن دوسرے دن سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے 29 یا 30 روزے اللہ نے فرض فرمائے، تو وہ تو مسلمان رکھتا ہی رکھتا ہے، جو صحت مند ہے اور جو عاقل بالغ ہے تو اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ رکھے۔ تو وہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ شوال کے جیسے روزے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جیسے مفتی صاحب نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، تو وہ گویا کہ اب وہ 30 روزے تو نہیں ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ، یعنی جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لینے کا آپ نے فرمایا۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اب وہ رمضان والی کیفیت یا رمضان والا ماحول یا وہ رمضان والے روزے تو نہیں ہیں، لیکن چلیں کچھ رمضان جیسا ہی ایک معمول اور ایک ماحول اور ایک روٹین انسان کی، وہ لذت اور حلاوت آپ کو یاد آئے گی، یاد رہے، وہ آپ چلتے رہیں اسی تسلسل کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13، 14، 15 ہر چاند کی تاریخ کو روزہ آپ کا رکھنا، پھر سوموار کا روزہ، اور بعد روایات میں آپ کے جمعرات کا یا جمعے کا بھی آپ کا روزہ آتا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کے قریب جو مہینے ہیں ان میں زیادہ پھر آپ کا روزہ رکھنا، غالباً شعبان کے بارے میں کہا کہ کہ بھئی اتنے روزے آپ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں حضور نے زیادہ روزے رکھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے وہی بات کہ بھئی جڑے رہنے کی بات ہے اصل، یعنی انسان کا جو تمسک ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے، وہ اچھے وقت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور اچھے مقامات پر بھی اس کے ساتھ بھی تعلق انسان کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مسجد میں جانے کا ہمیں حکم ہے کہ مسجد میں جائیں، تو مسجد کا ماحول آپ دیکھیے بالکل مختلف ماحول ہوتا ہے گھر سے، اور واقعی وہاں پر ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد کے ماحول میں ایسی برکت
रख दी है वो मस्जिद नबवी का सदका है, वो मस्जिद हराम का, मस्जिद अक्सा का सदका है कि आपके महल्ले की मस्जिद में भी एक सुकून और एक इत्मीनान और एक रूहानियत आपको वहाँ पर नसीब होती है। तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रज़ा और खुशनुदी यही है कि जैसे रमज़ान का महीना आपने गुजारा तो बाकी भी दिन आपके इसी तरह ही नज़र आएँ कि जैसे आप अभी तक रमज़ान की मोहब्बत में जी रहे हैं। सही। क्या किया जाए कि ये कंटिन्यू रहे, ये कैफियत बिल्कुल बयानी ही तो नहीं मुमकिन कि ये रहे, तो क्या ऐसी चीज़ कुछ फ़िक्री तौर पर कोई तब्दीली लानी है, कोई अमली तौर पर कोई तब्दीली लानी है, ऐसी चीज़ कि फिर हम अपने आप को जोड़े रखें, क्या तब्दीली ला सकते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी से किसी उज़्र की बिना पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तर्क हो गए हों तो उसे चाहिए कि उनकी क़ज़ा बजा लाए। ठीक है। और इसीलिए अगर जैसे बाज़ इशारा किया गया कि दिनों के रोज़े मुस्तहब हैं, अगर इंसान उस दिन अपने किसी रोज़े की क़ज़ा बजा लाएगा तो उसे उस सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा और साथ क़ज़ा भी उसकी अदा हो जाएगी। अच्छा, यानी शवाल के रोज़े भी हो जाएंगे और क़ज़ा भी अदा हो जाएगी, यानी वो भी सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता कर देगा। इसलिए अपने जो क़ज़ा हो गए किसी उज़्र की बिना पे उन्हें बजा लाएँ। और उसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया में तो ये है कि जो रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगले माह रमज़ान से पहले क़ज़ा बजा लाएँ। ठीक है। ये नहीं कि मैं कहूँ अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बग़ैर किसी उज़्र के अगले माह रमज़ान तक क़ज़ा नहीं की तो फिर उसे क़ज़ा भी करना है और हर रोज़े के बदले फ़िदिया भी देना होगा। अच्छा जी, अगर वो अगले माह रमज़ान तक बग़ैर उज़्र के क़ज़ा नहीं करता। ठीक है। और फिर ये कि अब वो जो हमने रूहानियत हासिल की माह रमज़ानुल मुबारक में उसे कैसे हम बरकरार रखें। जी हाँ। उसके लिए सबसे पहले मरहला तो ये है कि हमें अपने अंदर इबादत के बाद आजिज़ी पैदा करनी चाहिए। बहुत। यानी हमें जो इबादत है वो ख़ुद सर न बना दे, हमारे अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आ जाए, शायद मैं बहुत ज़्यादा नेक और मुत्तक़ी हो जाऊँ। इसलिए कि जैसे माल का तकब्बुर होता है, मनसब का तकब्बुर होता है या शोहरत का तकब्बुर होता है, इसी तरह बसा औक़ात इंसान को नेकियों का भी तकब्बुर होता है। और ये बहुत बुरा होता है जिसमें तक़वा जिसे कहते हैं, ऐसा ही है जिसे वो खुश्क मुत्तक़ी कहा जाता है कि यानी वो अपने अलावा बाकी हर एक को गुनहगार समझ रहा होता है। गुनहगार किबला काफिर समझ रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे बचाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बाज़ अफराद इस सतह तक चले जाते हैं। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला उस ज़ोम से बचाए कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर तसव्वुर कर रहे हैं, बल्कि हमें आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करना चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए, जब अब मैं माजरत के साथ एक चीज़ मैं इसमें आपसे ना गुजारिश करके, मेरे एक मुफ्ती साहब दोस्त हैं तो उन्होंने एक दिन बड़ा तकलीफ़ के साथ मुझे रोते हुए ये बताया कि हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने अभी मदारिस में पढ़ना दूसरा तीसरा साल है, चौथा साल है, तो तस्लीम भाई इतनी तकलीफ़ में कि वज़ू खाने में छुप छुप कर मेरा वज़ू देखते हैं। मैं जब सुन्नतें या नवाफिल में जब पढ़ रहा होता हूँ तो पीछे बैठकर मेरी नमाज़ें चेक करते हैं। इमाम की इमाम की ये मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि वो चेक कर रहे होते हैं कि हम क्या, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं वज़ू ठीक कर रहा हूँ, मैं नमाज़ें ठीक पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारों की पीछे नमाज़ें हैं। यानी ये आलम हो गया हमारी तनकीदी सोच का कि हम एक दूसरे पर इतबार करने के लिए, मतलब हम थोड़ा सा इल्म आ जाए, वो कहते हैं ना जो नीम हकीम ख़तरा जान होता है, तो वो थोड़े इल्म की ना फिर वो उल्टियाँ करते फिरते हैं। नीम मुल्ला ख़तरा ईमान है ना, ख़तरा ईमान है। नीम मुल्ला ख़तरा ईमान है। और उसके लिए जो है ना औरफा बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं अपने दर्स अखलाक में। वो कहते हैं कि अगर किसी के जेब में सिक्के हो ना तो वो ज़्यादा उसकी छन छन की आवाज़ आती है, और अगर आपके जेब में 5000 वाले नोट है तो आवाज़ नहीं आती। और ये भी ऐसे ही है, वो जिसने दो बातें पढ़ ली हो ना वो सिक्कों की तरह ज़्यादा उसकी झंकार आ रही है। हाँ जी, और ये है कि जहाँ पे इल्म होता है वहाँ पर सुकूत होता है, खामोशी होती है, इंकिसारी होती है। इसलिए जो इल्म है वो हमें झुकना सिखाता है, इंकिसारी सिखाता है। सही किबला, एक तो ये जो शवाल के रोज़े क्या अहनाफ में भी जो क़ज़ा है वो शवाल के रोज़ों के साथ रखी जा सकती है? शवाल के रोज़े भी वही शुमार हों और
क़ज़ा भी ऐसा हो सकता है? देखें, सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि सबसे पहले जो ज़िम्मे हमारे क़र्ज़ है उसको हम अदा करें। ठीक है। यानी जो क़ज़ा रोज़े कर चुके हैं, जैसे ख़वातीन के बाद रोज़े रह जाते हैं तो वो नफली रोज़ा न रखें, वो उसकी जगह क़ज़ा रोज़ा ही रखें। ठीक है। बाकी जिन्होंने मुकम्मल रोज़े रखे होते हैं उनके लिए शवाल के रोज़े उनमें मौजूद नक्स को दूर कर देते हैं। नफल जो होता है वो फ़र्ज़ के अंदर जो खामी होती है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। और एक बात जो पहले आप जिक्र फरमा रहे थे, वो अगर वक्त हो तो मैं एक ज़रा उस पर वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो लोग ये सोच रखते हैं कि बस हम ही हैं, बाकी कायनात फजूल है, वो बनी इसराइल का एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है कि एक शख्स ने पहाड़ पे दर्जनों साल उसने जो है ना इबादत की और उसके दिल में ये गुमान हुआ कि अब तो मैं ही हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। तो उसको अल्लाह करीम ने ख्वाब में बताया भी इस वक्त मेरी बारगाह में जो मकबूल है वो फ़लाँ चौराहे पे जो मोची जूते गांठ रहा है वो मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये पहाड़ से नीचे उतरा, इबादत का ज़ोम था, बड़ा मुश्किल से नीचे आया और उसके पास जब गया तो वो जूते अपने गांठ रहा था। तो उससे पूछता है भी क्या अमल करते हो, बताया नहीं भी मामला क्या है। उसने कहा भी सारा दिन ये रोज़ी कमाता हूँ, उसका एक हिस्सा सदका कर देता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, ये मेरी रूटीन है, जो इबादत है वो मामूल की करता हूँ। क्या उसने सोचा कि ये तो कोई ख़ास अमल नहीं है, फिर चला गया, फिर अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ की कि कोई बंदा दिखा कि जो तुझे बड़ा मकबूल है। फिर अल्लाह ने उसी बंदे का बताया कि वो जो मोची है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। 3 दफ़ा दिखाया, फिर नीचे उतरा और उससे पूछता है भाई कोई बात बता, कोई ख़ास बात तेरे करता अंदर क्या है? वो कहता है कि मियाँ मामला ये है, कोई अमल तो ख़ास नहीं है, बस मैं ये सोचता हूँ कि ये सारे लोग अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ। वाह वाह। तो उस बात ने उसे उसकी दर्जनों साल की इबादत के ऊपर फजीलत दे दी और अल्लाह ने उसे पसंद कर पहला जुर्म ही यही था ना, पहला जुर्म ही यही था कि शैतान ने ये कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। तो ये अपने आप को इससे बेहतर, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, ये इब्लीसियत और है। बिलखुसूस जो टो में लोग रहते हैं ना, उनको अल्लाह ने कौन सी जिम्मेदारी लगाई कि इनकी खामियां निकालो और लोगों को बताओ। और सूफिया का ये तरीका नहीं रहा। सूफिया हमेशा अपने आप को कमतर समझते थे, कमतर कहते थे और कहते थे ये मुझसे अच्छे आदमी है, मेरे मुझसे नेक लोग हैं। वो कभी जोम नहीं करते थे इस तरह। सूफिया के अगर आप पढ़े ना वाक़यात, जी, आप उसमें जैसे मोची का हवाला, नान बाई का हवाला, हज्जाम का हवाला, यानी वो इतने इबादत गुजार लोग थे, लेकिन उनके वाक़यात में, हकायात में हमें इन लोगों के हवाले मिलते हैं क्या कि बात। इनसे सबक सीखा। ये भी कैसा इशारा है कि देखो ये कितने महबूब हैं।